السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، ہم منتخب حدیث سے درس حدیث کر رہے ہیں اور آج اس کا درس نمبر 17 ہے۔ ہم نے حدیث نمبر 14 پہ بات کی تھی اور وہ یہ تھا کہ حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو اپنے بیٹے سے کہا کہ جب مجھے دفنا دینا، مٹی ڈال دینا تو تھوڑی دیر ٹھہرے رہنا، اور اتنی دیر ٹھہرے رہنا کہ جتنی دیر میں ایک اونٹ ذبح کیا جاتا ہے اور اس کا گوشت تقسیم کر دیا جاتا ہے، اتنی دیر آپ ٹھہرے رہیں تاکہ میں محسوس کرتا رہوں کہ یہاں پہ ہمارا کوئی بندہ ہے، موجود ہے باہر۔ حالانکہ اس موجودگی سے ان کی ذات کو کوئی فائدہ ہونا کچھ بھی نہیں ہے، بس صرف یہ ہے کہ آدمی جو ہے وہ سائیکولوجیکلی طور پر، نفسیاتی طور پر یہ محسوس کرے گا کہ وہ کوئی باہر آدمی میرا کھڑا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ تاکہ میں جان لوں کہ میں نے کیا جواب دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سلسلے میں حدیث بیان فرمائی کہ لوگوں، جب تم اپنے مردوں کو دفنا دیا کرو تو ان کے لیے دعا کیا کرو، کھڑے ہو کر کے یہ دعا ضرور کرو کہ اللہ تعالیٰ ابھی ان سے سوال کیا جائے گا اور وہ سوال کا جواب میں اللہ ان کو ثابت قدم رکھے اور سوال کا جواب ہو سکے۔ یہاں تک بات ہوئی تھی اور یہ روایت مسلم شریف کی ہے۔ اس میں 3 باتیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مردے جو ہے وہ سنتے ہیں، اور یہ ایک بڑا ڈسپیوٹڈ مسئلہ ہے کیونکہ دونوں طریقے کی حدیثیں ہیں۔ تو اس کا خلاصہ بتا دیتا ہوں کیونکہ یہ کوئی فقہی بحث نہیں لمبی چوڑی۔ ایک ہوتا ہے سننا اور ایک ہوتا ہے سنانا۔ کیا ہوتا ہے؟ ایک سننا ہوتا ہے، جیسے آپ اس وقت ڈائریکٹ سن رہے ہیں تو قرآن مجید کہتا ہے کہ انک لا تسمع الموتى، تم مردے کو سنا نہیں سکتے، مطلب تم جب چاہو کہ ہم جائیں، ہم جو بات بولیں وہ بات وہ سن لیں، یہ تمہارے بس میں نہیں ہے۔ تو ایک بات یہ معلوم ہو گئی کہ مردے خود سے نہیں سنتے، قرآن کی آیت۔ اور بھی اس طرح کی آیتیں ہیں، وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، کہ جو آدمی قبر کے اندر موجود ہے اس کو تم سنا نہیں سکتے ہو۔ اس طریقے کی بھی یہ آیت ہے۔ تو اس سے ایک طبقے نے یہ کہا کہ مردے سنتے نہیں ہیں، اللہ جب چاہتا ہے ان کو سنا دیتا ہے۔ تو یہ بات سب سے اچھی بات ہے کہ ہمارے بس میں ان کو سنانا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو جب چاہتا ہے تب سنا دیتا ہے اور جب چاہتا ہے تب نہیں سناتا ہے۔ کب سناتا ہے اور کیا سناتا ہے، اس میں حدیث کو، قرآن کو خوب چھان بین کرتے ہیں تو 2 باتیں معلوم ہوتی ہیں کہ 2 باتیں اللہ ان کو سناتا ہے۔ ایک یہ کہ کوئی بھی آدمی جب قبرستان جاتا ہے اور ان کو سلام کرتا ہے تو پروردگار عالم ان کو سناتا ضرور ہے، اور یہ بھی ان کو محسوس ہو جاتا ہے کہ فلاں آدمی نے سلام کیا ہے۔ تو ایک تو سلام، کسی وقت بھی آپ جائیں گے سلام کریں گے، وہ حدیث میں آتا ہے، صحیح حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو یہ سناتا ہے کہ فلاں آدمی نے سلام کیا ہے۔ فلاں آدمی اگر نہ بھی معلوم ہو تو یہ ضرور معلوم ہو جاتا ہے کہ سلام کیا گیا ہے۔ ایک وقت یہ ہوتا ہے جب ہر حال میں وہ سنتا ہے۔ دوسرا جو وقت ہے جس کو رب ذوالجلال سناتا ہے کہ جس وقت وہ دفنایا جاتا ہے، فوراً وقت جو ہے دفنایا جاتا ہے، اس وقت جب وہاں سے لوگ جانے لگتے ہیں تو وہ ہر حال میں سنتے ہیں کہ لوگ اب جا رہے ہیں۔ بخاری کی روایت میں ہے
کہ جب وہ جاتے ہیں تو اتنا سنتے ہیں کہ لوگوں کے چپلوں کی آہٹ تک سنتے ہیں، اور وہ آواز ان کو آتی ہے کہ اب بندے ہم کو چھوڑ کر کے جا رہے ہیں۔ ان دو کے علاوہ سننے کے لیے اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کب وہ سنتے ہیں کب نہیں سنتے ہیں، لیکن یہ دو پکا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو سناتا ہے۔ یہ جو قرآن نے کہا کہ تم ان کو سنا نہیں سکتے، اس کے پیچھے وجہ تھی کہ بہت زمانے سے ابراہیم علیہ السلام کا جب دین بگاڑا لوگوں نے، تو لوگوں کے اس دین بگڑنے میں ایک بات یہ بھی بگڑی کہ جا کر کے لوگ ان کی قبروں پہ مانگتے تھے اور کہتے تھے۔ اس کے ضد میں یہ بات آئی کہ کوئی جو ہے وہ مردے کو سنا نہیں سکتا ہے، کیوں؟ اگر سنانے کی بات آئے گی تو سب سے بڑا مسئلہ یہی جو شرک کا آتا ہے کہ بندہ جا کر کے بولتا ہے کہ آپ میرے مسائل کو، اب 3 طریقے کا عقیدہ روک رکھتے ہیں جو قبر پہ جاتے ہیں۔ ایک سمجھتے ہیں کہ ڈائریکٹ یہ ہماری ساری باتیں سن رہے ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ بات مان لیا جائے کہ ڈائریکٹ سنتے ہیں تو کس لینگویج میں سنتے ہیں؟ ایک اللہ والا ہے، وہ کنڑا جانتا تھا، اردو نہیں جانتا تھا، یا ایسی ہزاروں میں جملہ بتا رہا ہوں کہ اب مرنے کے بعد وہ ملٹی لینگویج جاننے لگے۔ کون سے اسکول میں چلے گئے صاحب کی ساری زبانیں انہوں نے منٹوں میں سیکھ لیا۔ تو یہ بڑا مسئلہ آتا ہے کہ اگر سنتے ہیں تو کس لینگویج میں سنتے ہیں۔ لہذا مرنے کے بعد کسی آدمی کا پاور بڑھتا نہیں سوائے گھٹنے کے۔ جب مر جاتا ہے بندہ، اب اس کو تھوڑا سے گرم پانی سے نہلائے تو بھی نہیں بولتا، اور ایک دم برف کے پانی سے نہلانے تو بھی نہیں بولتا، کیونکہ اب اس کا احساس کیا ہو گیا ہے، ختم ہو چکا ہے۔ لہذا یہ جو جا کر کے وہاں کہا جاتا ہے کہ عقیدہ جو رکھا جاتا ہے کہ سب کچھ سنتے ہیں، یہ ایک دم غلط ہے۔ نمبر 1، سب سے پہلی بات کہ لینگویج کی پرابلم آئے گی۔ اچھا، ایک ساتھ ایک عرف ہو رہا ہے، 2000 آدمی کھڑے ہو کر کے بات اپنی کر رہے، کس کی سنتا ہے وہ؟ جب زندہ تھا تو 5 آدمی بھی اگر اکٹھا بولنے لگے تو بولتا تھا بھائی ایک ایک کر کے بات کرو۔ اب مرنے کے بعد وہ 5000 کی بات ایک ساتھ، یہ صفت الہی ہے، رب ذوالجلال کی صفت ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ساری دنیا اگر میرے سامنے ہاتھ پھیلائے اور مانگے تو میں سب کو ایسے ہی سنتا ہوں گویا ایک ہی کو سن رہا ہوں۔ یہ کس کا کمال ہے؟ یہ اللہ کا کمال ہے۔ آپ نے اللہ کے کمال کو بندے کے کمال سے کیا کر دیا؟ جوڑ دیا لا کر کے۔ لہذا یہ ایک بڑا دوسرا مسئلہ کھڑا ہوتا ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ دوسرا عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ نہیں صاحب، سنتے ہیں، کر کچھ نہیں سکتے ہیں، ہماری بات اوپر پہنچا دیتے ہیں۔ تو پہلا سوال تو پھر بھی باقی رہے گا کہ کس زبان میں سنا، کس کی سنا، کیسے سنا، وہ تو باقی رہے گا۔ یا یہ دوسرا معاملہ ہو گیا کہ صاحب ان کی چلتی ہے اور یہ اوپر بات پہنچاتے ہیں، کسی کی نہیں چلتی، کسی کی چلتی ہی نہیں ہے۔ اتنی چلتی، اگر ان کی چلتی کسی کی تو اپنی موت کو روک لیتے اور آنے نہیں دیتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ بوڑھے ہوتے ہیں تو ہر چیز بوڑھی ہوتی ہے، آنکھ، ناک، کان، سب دن پر دن بوڑھا ہوتا ہے۔ فرمایا کہ 2 چیزیں جوان ہوتی ہیں، جیسے جیسے بندہ بوڑھا ہوتا ہے ویسے ویسے 2 چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ جوان ہوتی ہے۔ اس میں سے ایک جوان ہوتا ہے کہ میں اور زندہ رہوں، میں اور زندہ رہوں، یہ چیز جوان ہوتی رہتی ہے۔ تو وہ جو جوان ہوئی چیز ہے اس کو وہ چاہتا ہے اگر اتنی طاقت ہوتی تو اپنے مرنے سے پہلے اس کو کیا کر لیتا؟ روک لیتا۔ تو یہ جو عقیدہ دوسرا رکھا جاتا ہے کہ ہماری بات، تیسرا جو شرک اکبر ہے کہ خود سنتے ہیں اور جو چاہتے ہیں اپروول کر دیتے ہیں، یہ شرک اکبر ہے۔ قرآن کریم میں اس بات کا ذکر ہے کہ قیامت میں اللہ ان لوگوں سے پوچھے گا کہ یہ تم کو پکارتے تھے، تو انہوں نے کہا وہ تو کہیں گے مجھے تو معلوم بھی نہیں تھا مجھے پکارا گیا ہے، مجھے تو معلوم بھی نہیں تھا پکارا گیا ہے۔ یہاں ہبلی کا ایک واقعہ ہوا، میں آپ کو ایگزیکٹ بتاتا ہوں، ہبلی میں نہیں ہوا، واقعہ دوسرے شہر میں ہوا۔
मैं बैठा हुआ था, अभी की बात नहीं है, तकरीबन 20-25 साल पहले की बात है। मैं अपने कमरे में बैठा था, फजर का वक्त था, एक साहब आए, नमाज पढ़ी मदरसे में और पढ़ करके हमारे कमरे में दाखिल हो गए, और दाखिल होने के बाद उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया अंदर से। हालांकि हम मदरसे में अपना कमरे का दरवाजा बंद करते ही नहीं है। अब अचानक एक आदमी दरवाजा जब बंद किया तो मुझे थोड़ा सा खतरा लगा कि मालूम नहीं किस टाइप का आदमी है। खैर मैंने सोचा कि अगर ये 2-2 हाथ करेगा तो हम इसके लिए काफी है। 25 साल पहले की बात है। तो अचानक बैठ गया सामने, ज़ारो कतार रोने लगा। कोई बात नहीं किया, एकदम ऐसे जैसे बच्चा बिलक बिलक कर रोए। मैं समझ गया बंदा परेशान है। मैंने रोने दिया, 2-4 मिनट 5 मिनट रोता रहा। जब वो उसका थोड़ा सा सब हल्का हुआ तो मैंने कहा मैं आपसे एक मसला पूछने आया हूँ, और ये मुझे मेरे साथ ऐसा हुआ है, ये मसला मैं पूछने आया हूँ। हमने कहा फरमाइए। जाके हमारी बीवी को आसेफ था, तो लोगों ने कहा कि फला कब्र पे आप ले जाइए, मेरा उसका मैका भी वही है, वहां पे ले जाइए और ले जा करके उनको छोड़ दीजिए। वो मैसूर में टीचर थे, उन्होंने कहा मैं टीचर हूँ, मैंने मैके में छोड़ दिया, और बीवी हमारी आती जाती रही, प्रेग्नेंट थी। कब्र पे 3 आदमियों ने उसके साथ बिना बिल जब्र किया। बहुत बड़ी दरगाह, मैं नाम ले लूं तो हमारी हालत खराब कर देंगे लोग। बिना बिल जब्र किया। फिर मेरी बीवी ने मुझे फोन करके बताया ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ। मैं उसको लेकर अब जा रहा हूँ मैसूर, ये जो होटल है तुम्हारे बगल में, वहां ठहरा हूँ। मैं सिर्फ ये पूछने आया हूँ कि अगर ये अल्लाह वाले जो हैं ये अगर सुनते हैं और मदद करते हैं तो इन्होंने मदद क्यों नहीं किया, ये उसका सवाल था। यानी इतना घिनौना काम उसी कब्र पे हुआ, और वो जिसके बारे में आप समझते हैं कि सारों की मदद करते हैं, उन्होंने यहां मदद क्यों नहीं किया। मैंने कहा कि या तो यह कहा जाए नऊज़ बिल्लाह कि जो काम हुआ वो उनके नजदीक जायज था। जो भी काम हुआ वो जिसके बारे में आप जानते हैं कि हमारी मदद करते हैं, हमको बेटा देते हैं, हमारे मसाइल हल करते हैं, उनके नजदीक ये काम बहुत अच्छा हुआ, लिहाजा उनको मदद करने की जरूरत ही नहीं। और अगर ये है कि ये बहुत बुरा काम है और मदद नहीं किया, तो हम जो बात कहते हैं कि एक पत्ता भी नहीं हिला सकते, वो यही है, कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, ईमानदारी से बताएं, प्रैक्टिकली तौर पर आप सब लोग इसी देश के रहने वाले हैं, सारी कब्रों पे शरीयत के खिलाफ ये अय्याशी का मामला होता है या नहीं होता है? कोई कब्र ऐसी नहीं है, कोई कब्र ऐसी नहीं है कि जहां पर चरसी, गांजा पीने वाले, शराब, जितने नाजायज काम है सब कहां होते हैं? सब कब्र के अतराफ में होते रहते हैं। जितनी बड़ी कब्र है उतना बड़ा धंधा होता है। सवाल यह है कि वो बुजुर्ग जो कभी तसव्वुर आप नहीं कर सकते, वो अल्लाह वाला बंदा है कि वो इन चीज, उसके सामने किसी की हिम्मत नहीं है कि बीड़ी पी ले, होता नहीं होता। बीड़ी पीने वाला भी जब किसी अल्लाह वाले के पास जाता है तो 2 मरतबा अपना मुंह धुल करके कहां जाता है? उसके पास जाता है। उसी की कब्र पे बैठ के चरसती जा रही है और वो कुछ नहीं कर रहा है। जो जिंदगी में उस बात को पसंद नहीं करता था कि बीड़ी पी जाए, जितने चरसी बैठे हैं, आप अपने शहर का देख लीजिए, चले जाइए देखिए, बड़े बड़े बाल रखाए हुए हैं, चिलम रखे हुए हैं, चरसी पी रहे। तो पता क्या चला कि जो तीसरा अकीदा तुमने रखा कि ये हमारे मसाइल सुनते और हल करते हैं, इनका मतलब ये सारी बदमाशियां उनको नऊज़ बिल्लाह बहुत पसंद है, तभी उनके कब्र के पास होती रहती है, उनके अतराफ में होती रहती है, और वो कुछ नहीं करते। अब एक सवाल होता है कि अल्लाह भी तो सब कुछ जानता, उन्हें भी तो कुछ नहीं करता। मैंने जब एक साहब से ये बात कही तो उन्होंने खट से ये जवाब दे दिया, नहीं समझे, जो कुछ भी हो रहा है इस दुनिया में शरारत, अल्लाह जानता नहीं जानता? अल्लाह जानता है। तो अल्लाह क्यों नहीं पकड़ा? इसलिए उन्होंने भी नहीं पकड़े।
अब देखिए अल्लाह को किससे मिलाया ला करके? बंदे से। उसका जवाब देता हूं, अल्लाह क्यों नहीं पकड़ा है? इम्तिहान हॉल में कभी भी रिजल्ट नहीं दिया जाता। इम्तिहान हॉल में रिजल्ट नहीं दिया। आप चाहे, पूछा गया है कुरान मजीद की एक आयत कि इसका तर्जुमा करो, आप फिल्मी स्टोरी लिख दीजिए, वो बोलेगा जो गार्ड है कि क्या कर रहे हो, शर्म नहीं आती तुमको? वो बोलेगा? नहीं बोलेगा। ऐसे हजारों बच्चे सवाल कुछ पूछा जाता है और फिल्मी स्टोरी लिख करके चले आते हैं, कुछ नहीं लिख पाते हैं। या 2 और 2 आपने आखिर में 5 लिख रखा है, 2 + 2 = 5, वो बोलता है? नहीं बोलता। ये दुनिया अल्लाह ताला ने क्या किया है? इम्तिहान गाह बनाया है। इम्तिहान गाह में वो किसी को पकड़ता नहीं है। पकड़ ले कभी, ज्यादा शरारत जब एग्जाम हॉल में करते हैं तो कभी कभी रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। ऐसा भी हो जाता है कि कभी कभी कापी छीन करके लाल पेन लिख करके बाहर कर दिया जाता है। लेकिन 99% आप जो कुछ करते रहते हैं वो कुछ नहीं होता है। लिहाजा अल्लाह जो नहीं करता है उसकी वजह यह है कि ये दुनिया इम्तिहान गाह है। कुरान मजीद ने कहा लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। उसने तुमको भेजा है ताकि तुमको आजमाए कि इस दुनिया में भलाई कौन करते, बुराई कौन करते हैं। ये अल्लाह की सिफत है। इंसान को क्या कहा गया है? इंसान के सामने अगर बुराई हो, इंसान के सामने अगर जुल्म हो, जब तक अपनी जान का खतरा नहीं है तब तक लाजिम है कि आप उसकी मदद करें। भले तुमको ये भी मालूम हो जाए कि इसके घर में आग लगी है और ये बड़ा शराबी है, फिर भी आप पर लाजिम है कि आप उसकी मदद करें। ये इंसानी सिफत है। अब आपने उनको इतना पावर दिया है कि वो वहां से बैठे हुए हजारों किलोमीटर लोगों की मदद कर रहे हैं, तो यहां क्यों नहीं कर रहे? जो उनके कब्र पर हो रहा है वहां क्यों नहीं कर रहे हैं? हजारों किलोमीटर करते हैं। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को लोगों ने लफ्ज़ मुश्किल कुशा कह दिया कि मुश्किल कुशा है, सारे मसाइल हल करते हैं। उनके बेटे हजरत हुसैन वहीं शहीद कर दिए गए, मदद नहीं किया उन्होंने। वहीं करीब में थे, कुछ भी मदद नहीं किया। तुम्हारे 4000 किलोमीटर से तुम उनको पुकारते रहते हो अली मुश्किल कुशा हैं, और वहीं पर हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु मार दिए गए, कुछ भी नहीं किया उन्होंने। तो ये जो है, हजरत हसन को जहर दे दिया गया अपने बेटे के। जो अपने बेटे की मदद नहीं करता, तुम्हारी मदद कहाँ करने आता भाई? तुम्हारी मदद कहाँ करने आता है? तो मदद करने की जहां तक बात है, कोई नहीं कर सकता। मदीने पर ऐसे ऐसे हमले हुए हैं कि आप हैरत करेंगे। शर्म आती है हमको कि मुसलमान होकर के मदीने पर ऐसा हमला हुआ। बैतुल्लाह की ईंट से ईंट बजा दी हज्जाज बिन यूसुफ ने, कुछ भी नहीं हुआ। मिंजनीक लगवा दिया, जिसको तोप आप कहते हैं, मिंजनीक लगा करके बैतुल्लाह की दीवारों के परखचे उड़ा दिए उसने। इतने बड़े बड़े बुजुर्ग वहां मदफून हैं, कुछ भी नहीं हुआ। लिहाजा ये एक गलत फहमी है करने वाली जात अल्लाह की है। तो तीनों बातें कि हमारी एप्लीकेशन फॉरवर्ड करते हैं, ऐसी भी हमारे पास कोई दलील मौजूद नहीं है। डायरेक्ट हमारी बात सुन लेते हैं और हमारी मदद करते हैं। अगर करते हैं तो जितनी कब्रें हैं उन पर जितनी शरारतें हैं सब अपाहिज हो जाना चाहिए, अंधे हो जाए, लंगड़े हो जाए, लूले हो जाए, मर जाएं, हार्ट अटैक हो जाए, सब कुछ होना चाहिए। कुछ भी नहीं होता। बड़े बड़े धंधे ब्लैक क्या कहते हैं कस्टम के, इसके उससे दोबारा तो बहुत कम है, दूसरे ममालिक तो इसमें बहुत टॉप पर है। लिहाजा ये जो है, जो सही बात है वो ये है कि अल्लाह ताला जब चाहता है इनको सुना देता है, जब नहीं चाहता है नहीं सुनाता है। और यही बात कुरान हदीस से एग्जैक्ट। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तो सख्ती से इस बात को कहती है कि तुम सुना ही नहीं सकते हो, तुम्हारे बस में है ही नहीं कि किसी भी मुर्दे को आप क्या कर दें, सुना दें। ये हमारे बस में नहीं है। हमारा अल्लाह जब चाहता है तो सुना देता है। एक बात इस पे और कह दे करके बात खत्म करते हैं। ये जो सवाल किया जाता है जब कब्र में पहुंचते हैं तो 3 सवाल होता है कि मन रब्बू का, मन नबियों का, मादीनों का। ये सवाल बाद लोग समझते हैं हम यहाँ तैयारी कर लेंगे तो वहां जवाब दे देंगे। इसका तैयारी से कोई ताल्लुक नहीं। आप नेक होंगे खुद ब खुद ये सवाल आपका जवाब दे पाएंगे, नेक नहीं होंगे जवाब नहीं दे पाएंगे। सवाल ये है कि जब अभी कयामत में सारा मामला होना है तो यहां ये सवाल क्यों किया जाता है?
देखें, जब मुकदमा चलता है ना, मुजरिम साबित करने के लिए एक जिरा होकर के साबित कर दिया था, फिर कहता है जज कि जज ने अपने फैसले को महफूज कर लिया। 10 दिन के बाद सुनाता है, कभी कभी 15 दिन के बाद सुनाता है। ये बता देता है कि जुर्म साबित हो गया है, फैसला कब सुनाया जाएगा? 10 दिन के बाद। ये जुर्म साबित करने के लिए सवाल है। या तो बंदा बनने वाला मुजरिम है और या मुजरिम नहीं है। अगर मुजरिम है, जैसे ही कोर्ट कह देता है कि इनके ऊपर लगाया गया इल्जाम सही हो गया, फौरन उसी वक्त पुलिस क्या कर लेती है? उसको अरेस्ट कर लेती है। उसको 1 मिनट के लिए नहीं छोड़ा जाता है। अभी हालांकि जजमेंट नहीं हुआ है कि इसको सजा कितने दिन की होगी, लेकिन पुलिस ने उसको क्या कर लिया? अरेस्ट कर लिया। सेम यही कैफियत है। जो लोग इन सवाल का जवाब दे लेंगे, उनके साथ रिहाई की तरह मामला होगा और उनको ऐसा महसूस होगा कि गोया ये एक दुनिया है जिसपे हम आराम से रह रहे हैं। जिनके बारे में फैसला दोनों का रोका गया है, जन्नत में जाएगा ये तो तय है अगर उसने जवाब दे लिया है, लेकिन अभी सारा हिसाब किताब बाकी है। ये एक बात है, इसलिए ये होता है। दूसरा सवाल इसमें यह है कि जब कयामत में अल्लाह ताला हिसाब किताब करेगा तो ये मर गया बंदा, उसकी तो कयामत आज ही हो गई। जब हम मर गए, हमारी कयामत कब है? जिस दिन हम मर गए। दुनिया में कयामत जब भी है, हमसे क्या फर्क पड़ता है? उसी वक्त परवरदिगार आलम हमारा हिसाब करके मामले को खत्म कर दे। आज से भाई खत्म हो गया मामला तुम्हारा। हिसाब किया नहीं जाता है, हिसाब को डिले किया जाता है। उसकी वजह क्या है? मिसाल के तौर पर आपने शादी की है, अपनी बेटी को बेहतरीन किस्म का टीवी दिया है, वो बेटी जा करके रोजाना उसमें डांस देखती है। तो जब तक टीवी रहेगी, जब तक बेटी डांस देखेगी, तब तक तुम्हारा अकाउंट चालू रहेगा ना। तो इसलिए अकाउंट खत्म नहीं किया जाता है। कुरान मजीद क्या कहता है? उस चीज को आप देखेंगे जो आपने भेजा है। तो जो लोग इस दुनिया में नेकी किए हैं, मिसाल तौर पर आपने एक मस्जिद के लिए जमीन बनाई है, उस पे 2000 साल मस्जिद रही, 10,000 कयामत तक मस्जिद रही, तो जब तक उस पर लोग नमाज पढ़ते रहेंगे, उस जमीन पर आपका अकाउंट चालू रहेगा। तो अकाउंट बंद नहीं हुआ अभी। आप और हम मर गए हैं, हमारी सांस बंद हो गई है, अकाउंट बंद नहीं हुआ है। ना नेकी का अकाउंट बंद हुआ है और ना बुराई का अकाउंट बंद हुआ है। एक आदमी ने बिदअत की है, कहा मेरी कब्र पक्की बनाना और उस पर ये करना, जब तक वो कब्र पूजी जाती रहेगी तब तक उसको गुनाह मिलता रहेगा। तो बंदा मर गया है, अकाउंट थोड़े मरा है, अकाउंट नहीं मरा है, अकाउंट चालू रहता है। इसलिए हिसाब मरते ही बंदे का नहीं होता है, क्योंकि अभी इसका अकाउंट क्या है? चालू है। सांस रुकी है, अकाउंट नहीं होता है। इस वजह से इसको डिले किया जाता है और एक दिन खास रख दिया गया है, जजमेंट का दिन, ताकि उस दिन, इसीलिए तो बहुत से लोग क़यामत में कहेंगे कि अल्लाह ये कहां से आया मेरे अकाउंट में, मैं तो किया ही नहीं। तो अल्लाह ताला बताएगा ये फला जगह से है, तुम्हारे बच्चे ने तुम्हारे लिए दुआ मग़फ़िरत की है, वो तुम्हारे अकाउंट में दाखिल है। लिहाजा कौन कब तक करता रहेगा और गुनाह कितना होता रहेगा, उसकी वजह से दोनों चीजें शामिल होती रहती हैं। इसलिए बंदे के मरते ही उसकी फाइल लपेट नहीं दी जाती है। हुजूर ने फरमाया कि इज़ा मातल इंसान इनक़ता अमलुहु, कि जब इंसान मर जाता है तो उसका पर्सनल सारा का सारा जो अपने फिजिकली काम करता था वो खत्म हो गया, अब कुछ नहीं कर सकता। एक मतलब सुभान अल्लाह भी बोलना चाहे तो हम नहीं बोल सकते। जो फिजिकली इन्वॉल्वमेंट था इबादत के लिए वो खत्म हो गया है, लेकिन जो हमारा चालू है नेकी की है तो नेकी चालू है, उसका आखिर जिसको सदक़े जारिया कहते हैं, ये तो लोगों को अभी नहीं मालूम होता है। लोग मौज कर रहे हैं, 60-70 साल जिंदगी को खूब अच्छा करने की सारी फिक्र कर रहे हैं। वो तो जब आंख बंद हो जाएगी तब उसको एहसास होगा कि काश उस दिन में मैं ये भी कर सकता था, मैं ये भी कर सकता था, मैं ये भी कुछ मैंने नहीं किया। मैं सिर्फ अपनी जिंदगी और अपने बच्चों की, अपनी बीवी की लाइफ को लग्जरी बनाने के लिए मैं अपनी जिंदगी बर्बाद किया, और यहाँ एक आदमी खड़े होने के लिए हमारे तैयार नहीं है। आदमी को फिक्र उनकी भी करनी चाहिए उतनी जितनी शरीयत में इजाजत दी है, लेकिन अपनी फिक्र के लिए कोई तुम्हारा साथ नहीं देने वाला। जिनके लिए आप मर रहे हैं, एक आदमी आप देख लें, हम कब्रिस्तान से गुजरते हैं, गुजरते नहीं गुजरते, भर भर मोटरसाइकिल से गाड़ी से बैठ के गुजर जाते हैं। वो अब्बा जिनको जान देते थे, अब्बा वहां दफन है, खड़े होकर के सूरह फातिहा पढ़ करके भी उनको दुआ मग़फ़िरत करने के लिए तैयार नहीं है।
जिनके लिए आपने जान दी थी, जिनके लिए आपने घर बनाया था, जिनके लिए आपने प्लॉट बनाया था, आपके बगल से गुजर रहे, अपना इंतजाम बाबू खुद करो। कोई किसी के, और कितने दिन काम आएगा? ज्यादा लड़का बड़ा शरीफ हुआ तो चला जाएगा, पोते को क्या पता है? वो तो उसको तो ये भी नहीं पता है कि अब्बा दफन कहाँ है। ज्यादा हमको खुद कुआं खोदना है, खुद पानी पीना है, इसकी फिक्र करे। इसी फिक्र का नाम आखिरत की फिक्र है, यही असल है। और बकिया तो जो कुछ भी हो रहा है सारी दुनिया कर रही है, हम भी करें तो सीताराम जौन जैसे कर रहे बेटे, अहमद भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला कहने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।